चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पोकन इंग्लिश के इस स्पेशल सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ऑल, इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल first of all, and then after watching the video, if you are, if this video is knowledgeable for you and you get the benefit of watching the video, so please let's share this video with your family member, friends, so that they can be also get the benefit of this video. Let's start the session. आज के सेशन स्पोकन इंग्लिश का स्पेशल सेशन है, जिसमें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो देयर आर 4 types of sentences. First is 4 types of sentences, and these sentences types are these. First is declarative sentence. Number 1 is declarative sentence. Number 2 is interrogative sentence, Number 3 is imperative sentence, and number 4 is a exclamatory sentence. We are now on the next session. So what is the objective of today's lesson? So identify and define the 4 types of sentences. सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके 4 टाइप्स जो होते हैं उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा. यू आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग्स इन टूडेज वीडियो. अप्लाई द यूज, ओके, अप्लाई द अप्लाई द प्रॉपर यूज ऑफ सेंटेंस इन स्पोकन एंड रिटन. अब स्पोकन और रिटन में जो 4 टाइप के सेंटेंसेस है, इसके रूल्स को कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी आप इसमें सीखने वाले हो. देन कंस्ट्रक्ट करेक्ट शॉर्ट सेंटेंस, और जो शॉर्ट सेंटेंस को करेक्ट मीन्स सही कैसे बनाएंगे, ये भी आप इसमें देखने वाले हो. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. व्हाट इज सेंटेंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to define the definition of the sentence. So you must be know the definition of the sentence कि what is the sentence. तो sentence क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. What means क्या, is means है, a sentence means एक वाक्य क्या होता है. sentence means होता है वाक्य. तो a sentence, देखिए, a sentence is a word or group of words that express a complete thought. सेंटेंस क्या होता है, ये जो होता है ये एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. आर ऑफन, सेंटेंसेस आर ऑफन कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड पर्पस. सेंटेंसेस को उनके यूज और पर्पस के अनुसार क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में उन्हें बांटा गया है. सो which are those categories we will be going to learn. So there are 4 types of sentences in the English language. इंग्लिश लैंग्वेज में 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ थर्ड है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. Declarative sentence means positive. It has also two form, positive and negative sentence. Imperative sentence means you are in these sentences there must be command or there must be a request. ठीक है. request or a sentence related to the request or order that are included in a imperative sentence, or those sentences are called the imperative sentence. Next is exclamatory sentence. Exclamatory sentence means surprising. If you get surprised by hearing any news or after watching something or seeing something, so this kind of sentences are included in exclamatory sentences. Next number is the interrogative sentence. Interrogative sentence means you are asking a question to anyone. So question take a sentence which have question tag or question mark. So those, or if you are asking something to someone, so these types of sentences are called exclamatory sentences. These sentences can be used to make a स्टेटमेंट. जो ये सेंटेंस क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाने में काम आते हैं. इशू एन ऑर्डर और
रिक्वेस्ट एक ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं, एन इमोशन और पोज अ क्वेश्चन और क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है कि स्टेटमेंट देता है। ये क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है। टेल्स अ फैक्ट जो कि हमें फैक्ट बताता है, ट्रूथ बताता है। गिव्स इंफॉर्मेशन जो कि एक इंफॉर्मेशन देता है। एंड एक्सप्लेन समथिंग और कुछ एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। द पेंसिल पाउच ऑन द टेबल इज माइन। जो पेंसिल पाउच है वो जो टेबल पर रखा है वो किसका है? इज माइन। माइन मीन्स मेरा है। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ओनली स्पीक अबाउट फैक्ट एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सप्लेन समथिंग और जो कुछ बताते हैं। नेक्स्ट, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड विथ अ पीरियड बट समटाइम्स इट कैन एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, और एक्सक्लेमेशन पॉइंट पर भी ये फिनिश अप होते हैं। एक इसमें क्या होता है, फुल स्टॉप लग के भी ये एंड होता है और एक्सक्लेमेशन साइन पर भी ये एंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइड में। लेट्स ट्राई। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल बनाने के लिए ट्राई करेंगे। राइट 5 डिक्लेरेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्लाइड। तो यहाँ पर एक स्लाइड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इनको यूज करके क्या करना है, आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है मैग्नेटिक मैग्नीफाइंग ग्लास। नेक्स्ट है नंबर 2 इंग्लिश बुक। नंबर 3 है पेंसिल पाउच। नंबर 4 है हाईलाइटर एंड नंबर 5 है बलून। सो बलून आर आफ्टर filling the air it can be fly. So this is the very simple sentence. Magnifying glass. Magnifying glass means by using the magnifying glass you can be see the proper sight. English book. English is a very important language, and by the help of the English book we can be learn, we can be read, we can be understand the English language. Pencil pouch. Pencil pouch contains the many numbers of pencils, means 10 or 12 pencils you can contain in a pencil box. It also gives a declarative sentence gives us the positive sense as well as the negative sense. So highlighter is not working properly, means it's not highlighting the things whenever I am using it, so it's not giving the proper highlight the particular line. Next number is the sentence of interrogative sentence. So what do you know by the interrogative sentence? Have you heard about that interrogative sentence? So let's start this about the interrogative sentence. तो interrogative sentence क्या होता है? An interrogative sentence is a sentence that asks direct question and request information or an answer. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसमें एक रिक्वेस्ट होती है या फिर रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन और एन आंसर होता है। ठीक है। एग्जाम्पल इज द बुक। एग्जाम्पल क्या है, इज द बुक ऑन द टेबल योर्स, और लास्ट में इसके क्या होता है, हमारा क्वेश्चन टेग होता है। तो जो बुक यहाँ पर टेबल पर है, क्या ये आपकी है? whenever any sentence start from the helping verb, so in the translation of the Hindi language we start the Hindi sentence from the क्या। is means यहाँ पे क्या होगा, is क्या हो जाएगा, क्या है। the book जो बुक है, on the table your क्या टेबल पर रखी हुई बुक आपकी है। an interrogative sentence end with a question mark, ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है। it can be in a positive or negative form and any टेंस, ये किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में हो सकता है। और इसके एंड में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, इसके एंड में होता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क होता है। लेट्स ट्राई। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमें इसके एग्जाम्पल तैयार करने, इसके सेंटेंसेस तैयार करने। राइट 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। सो फर्स्ट है मैग्नेटिक ग्लास, magnifying glass. So magnify glass, I am preparing one sentence for you, and then left 4 sentence you have to prepare by yourself. So first is magnifying glass. Magnifying glass means is
दिस मैग्नीफाइंग ग्लास इज योर, क्या ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपका है? सो दिस लाइक दिस कैन बी प्रिपेयर द सेंटेंस. नेक्स्ट स्लाइड. Next sentence is imperative sentence. Imperative sentence means an imperative sentence is a sentence that gives a command, makes a request, issue an instruction or offer a piece of advice. Imperative sentence क्या होते हैं? ये sentence होते हैं that gives us command, जो क्या देते हैं हमें? command देते हैं, makes a request या फिर request के काम में आते हैं, और issue an instruction या फिर क्या करते हैं कि instruction issue करते हैं, और ऑफर अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर कोई सलाह के लिए काम आते हैं. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सलाह होती है, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है या फिर इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं. एग्जाम्पल, प्लीज पास मी द पेन, कृपया मुझे पेन पास कीजिए, मुझे पेन दीजिए. तो प्लीज यहाँ पर क्या हो गया? एक इंपरेटिव सेंटेंस का के लिए सिंबल हो गया, एक वर्ड है प्लीज. तो जब भी हम किसी सेंटेंस में प्लीज वर्ड का यूज करेंगे तो वो हमारा टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस में ही आएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम एन इंपरेटिव सेंटेंस एंड विद अ पीरियड, मीन्स फुल स्टॉप पे एंड होता है, बट इट कैन ऑल्सो एंड विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? ये हमारे फुल स्टॉप पर एंड होता है, बट इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी यूज़ किया जाता है, सीधी स्ट्रेट लाइन, और इसके नीचे एक क्या होता है? पॉइंट होता है, तो इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे. अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है. यू हैव टू प्रिपेयर, you have to complete this exercise by yourself, and you have to make the imperative sentence by using these 5 words: magnifying glass, second is English books, third is pencil pouch, fourth is highlighter, and fifth is balloon. So next slide हम अगली स्लाइड में देखेंगे wrap up the session. चलिए तो हम अपने सेशन को wrap up करते हैं, मीन्स कंप्लीट करते हैं. आपने यहाँ पर 4 टाइप के सेंटेंसेस देखा. फर्स्ट था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड था इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद था इंपेरेटिव सेंटेंस, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो 4 टाइप के अपने सेंटेंसेस आपने यहाँ पर देखे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन, इफ this video is useful for you and you got the knowledge from this video, so please share this video with your family member and friends so that they can be also get the benefit of this video. Thank you very much. Bye bye.